Hello students. So now we saw construction of spherical wavefront. Now the second one is nothing but construction of plane wavefront. Construction of plane wavefront. सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट का कंस्ट्रक्शन अपने सिलेबस में नहीं है. सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट का कंस्ट्रक्शन अपने सिलेबस में न्यू सिलेबस जो 2020 में आया है उसमें भी कंस्ट्रक्शन और सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट नहीं है, पहले भी नहीं था. तो कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन वेवफ्रंट. नाउ फॉर प्लेन वेवफ्रंट व्हाट वी रिक्वायर? सो फॉर प्लेन वेवफ्रंट वी नो means source can be anything and that should be at infinite distance. Okay, source can be anything that should be at infinite distance. Okay, now when source will be at infinite distance then we get parallel ray of light. ऐसा मिलेगा अपने को parallel ray of light. तो parallel ray of light मिलेगा like this. Okay, तो ऐसे ये अपना आएगा parallel ray of light like this. या ड्रॉ नहीं करो, just एक मिनट समझ लो पहले. तो we will get parallel ray of light. Now there will be n number of parallel ray of light. So if we consider the locus of all that point, so locus of all that point will be like what? Plane. तो ये plane जैसा दिखेगा जिसको हम क्या बोलने वाले हैं? Plane wavefront. That is called as plane wavefront. Okay? तो 3D में ये कुछ ऐसा दिखेगा. But if we wish to draw this in 2D, जैसे ये है ऐसा plane जैसा है. Okay? But अगर मुझे इसको 2D में draw करना है तो this will be something like line. तो ये line जैसा दिखेगा आपको line. Okay? तो हम 2D में draw करेंगे तो हम ऐसा plane भी draw कर सकते हैं, but better we will draw what? Line. तो ऐसे line जैसा draw करेंगे. Okay? Then according to Huygens क्या होगा? Every point on this wavefront will act as a secondary source. तो वो भी खुद का waves emit करेगा in forward direction. And then क्या करेंगे? Tangent. तो उसका जो waves आएगा उसको common tangent draw करेंगे तो अपने को new position of wavefront मिल जाएगा. Okay? ये 3D में है और जो construction हमको draw करना है it should be in 2D. तो 2D में देखते हैं कैसे draw करेंगे. Okay? Okay. So in 2D, first of all, consider what? पैरेलल रेस. ठीक है. अगेन थोड़ा ऊपर भी जगह छोड़ के थोड़ा नीचे भी जगह रहने देना है हमको. एंड सपोज ड्रॉ दिस पैरेलल रेस. ठीक है. तो दोनों में 2 लाइन के गैप पे ऐसे आप ड्रॉ कर लो पैरेलल रेस लाइक दिस. रे ऑफ लाइट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेव नॉर्मल. सो दिस ऑल आर वेव नॉर्मल. रे ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ energy or light. Okay, and source is what? At infinity. Now if we will plot the locus of all that point, we will get what? Like plane. और अगर मैं 2D में ड्रॉ करूँ तो कैसा दिखेगा आपको? It will be like line. तो सपोज ये अपना है line. थोड़ा सा डार्क ड्रॉ करना है आपको like this. So this is, say assume this is a PQ. तो ये PQ क्या है अपना? This is primary wavefront. PQ is nothing but primary wavefront. Primary wavefront at t is equal to 0. At t is equal to 0. Initially हमने इसको कंसिडर किया primary wavefront. Now according to Huygens principle, every point on this primary wavefront will act as a secondary source. So we can consider infinite points, but we will consider few points. Like say this is A, point A, B, C, D. So this point A, B, C, D. This point A, B, C, D is nothing but secondary source. ये सब कैसा है अपना secondary source. Primary source तो already कहाँ पे infinity पे. So this all will act as a secondary source. Okay. Now, according to Huygens principle, secondary source will emit secondary waves called as wavelets in forward direction. So what we can do like अब राउंडर लेके अगर आपने 2 लाइन का गैप छोड़ा है तो आप ऐसे कर सकते हो कि लाइक सपोज टेक 5 सेंटीमीटर का लेंथ ले लो राउंडर में एंड 5 सेंटीमीटर का लेंथ लेके यू कैन ड्रॉ आर्क. ठीक है. तो 5 सेंटीमीटर का लेंथ लिया एंड वी कैन ड्रॉ व्हाट? आर्क. तो अगर मैं आर्क ड्रॉ करूँगा मीन्स ए वाले पॉइंट पे रखना है एंड ये सब हमको प्रिंसिपल में मालूम है कि इन टाइम इंटरवल t इट विल कवर डिस्टेंस c into t
एंड वी आर अज्यूमिंग कि स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम इज व्हाट c, और टाइम इंटरवल t में कितना कवर करेगा डिस्टेंस c into t. तो हेंस वी विल ड्रॉ आर्क ऑफ रेडियस, सिमिलर कंस्ट्रक्शन है जैसा वहां पे था वैसे यहाँ पे भी बढ़ेगा. ड्रॉ आर्क ऑफ रेडियस ct फ्रॉम ईच सेकेंडरी सोर्स. तो a वाले पॉइंट पे रखना है एंड सपोज 5 सेंटीमीटर एंड देन क्या ड्रॉ करना है आर्क. तो अगर आप आर्क ड्रॉ करोगे ऐसे कुछ ड्रॉ होगा. तो a वाले पॉइंट पे रखा, ये हमने क्या ड्रॉ किया आर्क ऑफ रेडियस ct, ऑफ रेडियस ct. यू कैन कंसीडर 5 सेंटीमीटर, ठीक है. तो ऐसे ड्रॉ किया. इन सेम वे b वाले पॉइंट पे रखना है, देन हमको क्या ड्रॉ करना है 5 सेंटीमीटर का सेम डिस्टेंस लेना है, सेम डिस्टेंस. सिंस स्पीड इज सेम, टाइम भी सेम ले रहा है तो डिस्टेंस सेम रहेगा. तो 5 सेंटीमीटर पुट एट पॉइंट b, देन ड्रॉ आर्क. तो ये अपना हो गया ct, सेकंड बार. इन सेम वे पुट एट पॉइंट c, देन ड्रॉ दिस आर्क. In same way put at point D and draw this arc. Okay, so this all are nothing but secondary waves. Secondary waves emitted by the secondary source called as wavelets. Okay, now we will draw the common tangent, the common tangent to all this arc. तो अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे कॉमन tangent, यूज प्रॉपर स्केल यूज करके ड्रॉ करना है. तो ड्रॉ कॉमन tangent, ठीक है. ड्रॉ कॉमन tangent टू ऑल दिस आर्क एंड से दिस इज p dash q dash, p dash q dash, एंड दिस कॉमन tangent will give the secondary wavefront. ये अपना क्या था प्राइमरी wavefront. This will provide us a new wavefront called as secondary wavefront. Secondary wavefront at instant t, at instant t. तो ये at t is equal to 0 पे था, इसको हम बोल सकते हैं at instant t. तो t instant पे इतना. एंड इन टाइम इंटरवल t इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया. सो दिस इज नथिंग बट c into t. तो ये डिस्टेंस को आपको दिखा देना डायग्राम में ऐसे c into t, c into t. एंड वी नो दिस इज वेव नॉर्मल. सो वेव नॉर्मल विल बी परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, सो लाइक दिस. ओके, तो ct a b c d e, दिस विल बी अवर सेकेंडरी वेव फ्रंट p dash q dash. देन अगेन क्या होगा, ऑल पॉइंट ऑन दिस सेकेंडरी वेव फ्रंट, लाइक वी कैन से a dash, this is b dash, c dash, d dash. This will act as a new source of light, or we can say tertiary source. They will emit their own waves and we get the position of, means we can say new wavefront like this. Okay, तो ये भी अपना new wave emit करेगा. Again we will draw tangent, we get position of new wavefront and so on. Okay, so this is nothing but the construction of plane wavefront. Okay, तो बेसिकली अपने सिलेबस में दो है, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फेरिकल वेवफ्रंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन वेवफ्रंट. कंस्ट्रक्शन ऑफ सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट नहीं है अपने को, बट वी नो कि फॉर सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट व्हाट वी रिक्वायर. सो फॉर सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट वी रिक्वायर लीनियर सोर्स और स्लिट सोर्स एट फाइनाइट डिस्टेंस. और एक बात अगर आप ध्यान से देखो, जनरली ये डायग्राम में हमने क्या देखा था कि प्लेन वेवफ्रंट के लिए इंटेंसिटी फॉर प्लेन वेवफ्रंट, intensity is independent of intensity, or we can say amplitude is independent of radius of curvature. means radius कि radius कितना है. तो जितना इंटेंसिटी लाइट वेव का यहाँ पे होगा, ये वेवफ्रंट का होगा, उतना ही आगे भी होगा, सेकेंडरी वेवफ्रंट का भी होगा. बट दैट विल नॉट बी इन केस ऑफ स्फेरिकल वेवफ्रंट. स्फेरिकल वेवफ्रंट में अगर आपका प्राइमरी वेवफ्रंट का इंटेंसिटी ज़्यादा है, देन क्या होगा, जैसे लाइट आगे जाएगा वो डाइवर्ज हो रहा है. डाइवर्ज हो रहा है मीन्स जो सेकेंडरी वेवफ्रंट मिलेगा, intensity of secondary wavefront will be lesser as compared to primary and so on. तो जैसे जैसे आगे जाएगा वो इसमें क्या होगा, intensity will goes on decreasing, क्योंकि वहाँ पे intensity का डिस्टेंस से क्या रिलेशन है, इनवर्स स्क्वायर. ओके, बट इन केस ऑफ प्लेन वेवफ्रंट intensity and amplitude remains unchanged. Hence मैंने आपको पॉइंट बोला भी था, radius of curvature of plane wavefront is infinite. Radius of curvature of plane wavefront is infinite. So this is our conception of plane wavefront. ये भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, लाइक फॉर 2 to 3 मार्क्स. तो आपको स्फेरिकल वेवफ्रंट एंड प्लेन वेवफ्रंट का कंस्ट्रक्शन हो गया. नाउ इन नेक्स्ट मॉड्यूल वी विल सी द नेक्स्ट concept based on Huygens principle. Okay, thank you.